أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. اور آج انشاءاللہ ہم جو ٹاپک شروع کریں گے وہ اسم کا جینڈر کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے. جیسے مذکر ہے، مؤنث ہے، اور اسی طرح مؤنث کی پھر ہمارے پاس ٹائپس آ جاتی ہیں. 3 ٹائپس ہیں اس کی، ان کو ہم انشاءاللہ باری باری دیکھیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا. کوئک سا ریویو کریں گے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا اس کا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے آج کے ٹاپک پہ چلیں گے. ٹھیک، اس میں جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں جو پڑھا تھا، ہم نے اعراب کو دیکھا تھا. اسم کے 4 پہلو میں سے ہم نے پہلا پہلو اس کا ڈسکس کیا تھا جو کہ اعراب ہے. تو اعراب کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب اعراب کے لحاظ سے ہم جو ہمارے پاس اسم کی پوری کیٹیگری آتی ہے اس کو ہم 2 اقسام دیتے ہیں، 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک ہمارے پاس تھا معرب اور ایک ہمارے پاس تھا مبنی. معرب میں آگے ہمارے پاس 2 ٹائپس آ جاتی ہیں، جس میں معرب منصوب اسماء ہے اور معرب منصرف اسماء ہے اور معرب غیر منصرف اسماء ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو معرب منصرف ہیں ان میں تینوں حالتوں میں 3 اعرابی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے مسلمن، مسلمن اور مسلمن، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اور معرب غیر منصرف اسماء میں ہمارے پاس 2 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی 2 شکلیں ہوتی ہیں. 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں ہوتی ہیں، حالت رفع میں ابراہیم، حالت نصب میں ابراہیم، حالت جر میں ابراہیم. اور مبنی اسماء ایسے اسماء ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں صرف ایک شکل اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس بہت ہی قلیل ہیں. یعنی عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو 2-3% ایسے اسماء ہیں جو کہ مبنی اسماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اس میں مثال ہے ہذا، جو حالت رفع میں بھی ہذا ہے، حالت نصب میں بھی ہذا ہے اور حالت جر میں بھی ہذا ہے. ذالک الذی، یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنس کو. جنس بالکل ایسے ہی جیسے ہم اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جنس میں 2 اقسام آتی ہیں. اس کو ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، مذکر اور مؤنث میں. مذکر ایسے اسماء ہوتے ہیں، عربی زبان میں ہم مذکر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یا کیسے پہچانتے ہیں؟ جو بھی ورڈ جو ہے وہ مؤنث نہیں ہوگا وہ مذکر ہوگا. یعنی کس طرح سے؟ یعنی ہم کسی بھی ورڈ کو جب مؤنث ثابت نہیں کر سکتے. ہم مؤنث کیسے ثابت نہیں کر سکتے؟ جس میں ہم آگے مؤنث کی اقسام پڑھیں گے. تو جب ہم کسی بھی اسم کو مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں ڈال نہیں سکتے یا وہ ورڈ مؤنث کی کسی بھی قسم کے اندر فٹ نہیں ہوتا، تو ایسا اسم مذکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہمارے پاس مذکر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے. بس جو اسماء مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے وہ پھر مذکر کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اس میں ہمارے پاس مؤنث کی 3 اقسام ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث علامتی اور مؤنث سمائی. تو مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے کہ وہ مؤنث جس کے مقابل میں کوئی مذکر موجود ہو. مذکر کیسے موجود ہو؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں ماں باپ، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ماں کے اپوزٹ ہمارے پاس باپ موجود ہوتا ہے جو ایک پیڑ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقی مؤنث میں ہمارے پاس ایک جوڑا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں لڑکا لڑکی، تو لڑکی کے اگینسٹ میں ہمارے پاس مذکر موجود ہے لڑکا.
تو جو لڑکا ہوگا وہ مذکر کی کیٹیگری میں آ جائے گا اور لڑکی مونس حقیقی کے کیٹیگری میں آ جاتی ہے، یعنی جس میں آپ کے پاس جوڑا موجود ہو. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اردو زبان میں بھی اس کا پتہ ہے، تو اسی ورڈز کو ہم عربک میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور وہی جو چیزیں ہمارے پاس جوڑے میں موجود ہوتی ہیں وہی اسی کا جو مونس ہے وہ حقیقی مونس ہوتا ہے، اور جو مذکر ہے وہ مذکر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. جیسے ماں باپ میں ہمارے پاس امن ورڈ جو ہے وہ مونس حقیقی کے کیٹیگری میں آئے گا، جبکہ ابن جو کہ باپ کو کہا جاتا ہے وہ مذکر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اسی طرح بنتن لڑکی ہوتی ہے اور ولدن جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے، تو ولدن مذکر ہو گیا اور بنتن لڑکی ہو گیا. اسی طرح اختن بہن کو کہتے ہیں، جس کا اپوزٹ ہمارے پاس عربک میں ہوتا ہے اخن بھائی، تو اخن مذکر کی کیٹیگری میں چلا گیا اور اختن مونس حقیقی کی کیٹیگری میں آ گیا. اسی طرح امرأتن جو ہے وہ عورت کو کہا جاتا ہے، اور رجلن جو ہے وہ مرد کو کہا جاتا ہے، تو رجلن ہمارے پاس مذکر ہو گیا اور امرأتن جو ہے وہ مونس حقیقی کے کیٹیگری میں چلا گیا. تو مونس حقیقی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جس کا جوڑا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو جب بھی ہمارے پاس جوڑا موجود ہوگا تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس مونس حقیقی ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو قسم ہے مونس کی، وہ ہے ہمارے پاس مونس لفظی. اس کو ہم مونس لفظی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم جج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مونس لفظی ہوتے ہیں. اوکے، اس میں ہم ان کو مونس لفظی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم لفظ کو پہچانتے ہیں، لفظ کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ملتی ہے، کوئی علامت ملتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مونس لفظی کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. اور ان کے اور بھی نام ہے، جیسے ہم مونس قیاسی اور مونس علامتی بھی اس کو کہتے ہیں. قیاسی کہ ہمارے پاس کوئی قیاس میں ہمارے پاس کوئی رول ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے جس سے ہم پہچان جاتے ہیں چیز کو. تو مونس قیاسی بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک قاعدہ ہوتا ہے، اور مونس علامتی کہ اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی علامت مل رہی ہوتی ہے. اچھا، اب اس میں ہمارے پاس تین اقسام آتی ہیں اس کی، یا تین اس کے اندر علامات آتی ہیں، جن علامات کو ہم پہچان کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مونس قیاسی ہے یا مونس علامتی ہے. تائ مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. تائ مربوطہ کیا ہوتی ہے؟ راؤنڈ تا. اور یہ جو تینوں علامات ہیں یہ آپ کو کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں ملتی ہیں، آخر میں ملتی ہیں. الف ممدودہ، الف ممدودہ ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس الف آ جاتا ہے اور الف کے بعد حمزہ آتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد الف مقصورہ، جس میں ہمارے پاس کھڑی زبر ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ، اور لاسٹ میں پھر ہمارے پاس یہ یا آ رہی ہوتی ہے، جس کو ہم پروناؤنس نہیں کرتے. پروناؤنس کیسے نہیں کرتے؟ یہ کبرا، ہم دیکھیں کبرا بولتے ہیں اس کو، را کو ہم پروناؤنس کریں، اس یا کو ہم پروناؤنس نہیں کرتے. تو یہ ہمارے پاس الف مقصورہ ہوتا ہے. الف ممدودہ میں ہمارے پاس مثال ہے صفراء بکماء. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس الف ممدودہ کی مثالیں ہیں، الف ہے اور بعد میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے. اسی طرح غرفتن، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تائے مربوطہ کے ساتھ فنش ہو رہا ہے. تو یہ تین علامتیں ہیں جو کہ ہمارے پاس مونس علامتی کی ہوتی ہیں، مونس قیاسی کی ہوتی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس مونس سمائی ہے، اور مونس سمائی اصل میں ایسا مونس ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے پاس قاعدہ کوئی نہیں ہے. اب اسکالرز نے عربی زبان کو جب سمجھا
पढ़ा और उसके ऊपर रिसर्च की तो उनको कुछ ऐसे अल्फाज और कुछ ऐसे अल्फाज का मजमुआ मिला जिसमें क्या था कि अहले ज़ुबान उसको मुअन्नस कहते थे। और ज़ाहिर है अहले ज़ुबान के लिए ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम देखें जब हम उर्दू बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस वर्ड को होता है बोलें और किस वर्ड को होती है बोलें। ठीक है? हम कहते हैं कि आसमान होता है, ज़मीन होती है। तो हमें बचपन से, क्योंकि हम सुन-सुन के इस ज़ुबान को सीखते हैं, हमें कोई कायदे तो नहीं पढ़ने पड़ते बचपन में। तो इसमें हमारे पास, हम जब उर्दू पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई कायदा मौजूद नहीं होता, तो हमें इसलिए कभी भी मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन अरबी चूँकि हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना कि सिमाई मुअन्नस की कैटेगरी में कौन से अल्फाज हैं, ये थोड़ा-सा टफ है। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम जज कर सकते हैं। जैसे हवाओं के जो नाम होते हैं वो अरबी ज़ुबान में मुअन्नस होते हैं। रिहुन, सरसरुन, बादुन, समूमुन, ये तमाम के तमाम मुअन्नस होते हैं। फिर हम देख सकते हैं शराब के नाम जो है वो सब हमारे लिए अरबी ज़ुबान में मुअन्नस होते हैं। खम्रुन, खरतूमुन। इसी तरह आग के जो नाम हैं, तो ये सब भी जो है हमारे लिए मुअन्नस होते हैं। नारुन, जहन्नमु, जहीमुन, जहीमुन, सईरुन और सक़रुन। ये तमाम जो नाम हैं ये आग के नाम है और ये मुअन्नस की कैटेगरी में आते हैं, सिमाई मुअन्नस। यानी ऐसे अल्फाज हैं ये जिनको अरबों ने हमेशा मुअन्नस की तरह ट्रीट किया है। और हमारे जिस्म के अज़ा हैं जो जोड़े में है। जैसे नाक है हमारा, एक नाक होता है, लेकिन कान है हमारे, दो कान होते हैं, तो जो कान है वो मुअन्नस होगा। ठीक है? उज़ुनुन, कान को बोलते हैं। आइनुन, आंखें होती हैं। कदमुन, हमारे फीट हैं। यदुन, हाथ है। रुकबतुन, हमारे घुटने होते हैं। तो जो जो हमारे जिस्म के अज़ा ऐसे हैं जो जोड़े में मौजूद है वो मुअन्नस होते हैं। फिर इसके बाद कुछ मुतफर्रिक अस्मा है, जैसे समाउन, अर्दुन, शम्सुन, नफ्सुन, दारुन, हर्बुन, आसन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास मुअन्नस है। समाउन में बेशक हमारे पास अलिफ ममदूदा एंड में आ रहा है, लेकिन ये मुअन्नस सिमाई की कैटेगरी में आता है। जमीन भी अरबी ज़बान में होती है और आसमान भी होती है, दोनों मुअन्नस हैं। इसी तरह सूरज हम उर्दू में मुज़क्कर की तरह यूज करते हैं, सूरज होता है, लेकिन अरबी में शम्सुन मुअन्नस है। तो यहाँ पर इन सिमाई मुअन्नस की हमारे पास ये 5 ग्रुप्स आ रहे हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं कि जो वर्ड है वो मुअन्नस है। अच्छा, और ये आखिर में एक नोट लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना के लिए ज़हन हर वक्त तैयार रखें, और ये वाकई बहुत अच्छा मशवरा है इनका कि अरबी ज़बान में हमारे पास हर कायदा मौजूद है और हर कायदे की, ऑलमोस्ट हर कायदे की हमारे पास एक्सेप्शन भी है। अच्छा, एक्सेप्शन से मुझे याद आया कि हमारे पास ये अलिफ मकसूरा है यहाँ पर, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडिंग फतहा होती है और उसके बाद हमारे पास ये छोटी या लिखी जाती है जो कि हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो इसके एक्सेप्शन हमारे पास क्या है? ईसा, मूसा, दोनों जो है वो मुज़क्कर है, लेकिन अलिफ मकसूरा के साथ खत्म हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। तो इस्तिस्नाआत की जो है वो, उसके लिए हमें अपना ज़हन हर वक्त तैयार रखना है कि अरबी ज़बान में जो भी कायदा हम पढ़ेंगे उसके कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगी। ज्यादातर जो कवायद है उनकी एक्सेप्शन मौजूद है। ओके, अब इन्होंने कुछ मिसालें दी हैं हमें, जैसे हमारे पास कुछ सिफात होती है, या फिलहाल के लिए हम इसको यही कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम खुद से मुअन्नस बना सकते हैं, और वो हम कैसे बनाते हैं? ताय मरबूता लगा के, जो गोलता होती है ये लगा के। जैसे सालिहुन होता है नेक, नेक के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जब हम लड़की को कहेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि सालिहुन है, हम लड़की को कहेंगे ये सालिहतुन है। जैसे सालिहा नाम भी होता है हमारे यहाँ जो उर्दू में। अच्छा, हसनुन,
अच्छा होता है, और हसनतुन अच्छी। ठीक है, ये फिर जब हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं किसी की सिफ्त के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, तो फिर हम जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हसनुन, और मुअन्नस के लिए तो हसनतुन। इसी तरह हमारे पास मुस्लिमुन है तो मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, यानी हम राउंड ता की एडिशन करके कुछ अल्फाज ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम खुद से मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे उस्तादुन, जो मेल टीचर है उसको हम कहेंगे तो उस्तादतुन जो है वो फीमेल टीचर के लिए। तिफ्लुन बच्चा, जो कि लड़का होगा, ये जो बॉय बेबी होगा हम उसको कहेंगे तिफ्लुन, और तिफ्लतुन जो है वो गर्ल बेबी को कहेंगे। इसी तरह इब्नुन जो है वो बेटे को कहते हैं, और इब्नतुन बेटी को। तिलमीजुन स्टूडेंट होता है जो कि मेल स्टूडेंट, और तिलमीजतुन जो है वो हमारे पास फीमेल टीचर, फीमेल स्टूडेंट होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास तकसीम है कि कुछ वर्ड्स के एंड में हम ताए मरबूता लगा के, राउंड ता लगा के हम उसको जो है वो चेंज कर लेते हैं। हम देखते हैं अच्छा ओके, अर्रहमान अर्रहीम, ये हमारे पास मुज़क्कर है दोनों, क्योंकि इसमें हमारे पास या ये हकीकी मुअन्नस में नहीं आ रहे, और इनमें कोई अलामत भी नजर नहीं आ रही, और सिमाई मुअन्नस में भी जो हमने अल्फाज देखे हैं उसमें ये मौजूद नहीं है, तो इसलिए अर्रहमान अर्रहीम दोनों मुज़क्कर हो गए। इसी तरह अद्दीन जो है मालिक यौमिद्दीन, तो अद्दीन भी हमारे पास मुज़क्कर इस्म है। इय्याका नअबुदु, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम, ये दोनों वर्ड्स भी हमारे पास जो है वो मुज़क्कर है, क्योंकि इसको हम मुअन्नस साबित नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अल किताबु, हमारे पास मुज़क्कर इस्म है। ओके, अल गैब भी जो है हमारे पास मुज़क्कर इस्म है। अब ये जो अस्सलाता है, अस्सलाता हमारे पास मुअन्नस है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक अलामत मौजूद है, क्योंकि मुअन्नस लफ्जी क्यासी की कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह आगे हम देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अल आखिरती है वो भी हमारे पास मुअन्नस है, क्योंकि इसमें हमारे पास राउंड ता एंड में आ रही है। अच्छा, ठीक, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं गिशावतुन, गिशावतुन जो है ये हमारे पास राउंड ता के साथ इस्म का अख्ताम हो रहा है, तो ये हमारे पास मुअन्नस लफ्जी मुअन्नस क्यासी की कैटेगरी में आ रहा है। और इसी तरह अज़ाबुन अज़ीमुन, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास मुज़क्कर है। ठीक, इसी तरह हमारे पास जो अन्नास है, आई नंबर 8 में, वमिन अन्नासी, अन्नास हमारे पास मुज़क्कर है। ओके, सिमाई मुअन्नस में हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अच्छा, एक और मैंने जैसे अभी पीछे भी जिक्र किया था कि जो हमारे पास तन्वीन कबूल करने वाले वर्ड्स है ना, वो हमारे पास तीनों हालतों में आते हैं, जैसे रिहुन है, सरसरुन है, बादुन है, समूमुन है, तीनों में तन्वीन आ रही है। तो इसका मतलब है ये तीनों एराबी हालतों में तीन शक्लें शक्लें इख्तियार करेंगे, हालत रफ रिहुन,
हालत जर रीहिन और हालत नसब रीहन। ठीक, इसके बाद खमरुन खरतूमुन, ये तीनों वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स भी हमारे पास 3 एराबी हालतों में आएंगे। अब हम आग के नामों में देखें तो यहाँ पे हमें 2 नाम ऐसे मिल रहे हैं जो तनवीन के साथ खत्म नहीं हो रहे, जहन्नमू और सक़रू। तो जहन्नमू जो है वो भी ऐसा वर्ड है जो कि गैर मुनसरिफ है, और सक़रू भी जो है वो गैर मुनसरिफ है, क्योंकि कुरान मजीद में जैसे आता है ना फी जहन्नमा, तो फी जहन्नमा में हमारे पास जहन्नमा का जो वर्ड है वो मतलब देखने में ऐसे लगता है हालत नसब है, क्योंकि वो फतहा के साथ फिनिश हो रहा है, लेकिन असल में फी जहन्नमा यहाँ पर हालत जर है इसकी। इसकी रीजन इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगी, लेकिन ये 3 एराबी हालतों में जो है वो करते हैं। तो जहन्नम का जो वर्ड है वो हालत नसब और हालत जर में जहन्नमा ही होगा, ठीक है, फतहा के साथ फिनिश होगा। इसके अलावा हमें इन 2 लफ्जों के अलावा यहाँ से माई मोनस में हमें कोई भी वर्ड जो है वो तनवीन के साथ नहीं मिल रहा। तो ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। तो इसके अलावा अगर कोई अल्फाज हमें मिलते हैं तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो यानी हम उनको किस तरह से करेंगे, क्योंकि ऊपर भी जिस तरह वर्ड्स लिखे हुए हैं समाउन, अर्दुन, शमसुन, यदुन, जो तनवीन के साथ खत्म होते हैं वो तीनों हालतों में आते हैं। इसमें देखें हम वापस चलते हैं गैर मुनसरिफ के टॉपिक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने गैर मुनसरिफ के 3 औजान पढ़े थे, अकबरू, असगरू, अकरमू, अरहमू, अनवरू, ये तीनों ये सब के सब अस्मा जो है वो अफ़आलू के वजन पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें तनवीन एंड में नहीं आ रही, ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। तो जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं वो आखिर में तनवीन कबूल नहीं करते। इसी तरह खद्राऊ, सफराऊ, जरकाऊ, हमराऊ, बकमाऊ, तो ये भी तनवीन कबूल नहीं करते, यानी ये हालत जर में भी खद्रा आ होगा, सफरा आ होगा, कसरा के साथ फिनिश नहीं होगा, जरका आ होगा, हमरा आ होगा, बकमा आ होगा। तो ये एक आपके लिए टिप हो सकती है। इसी तरह जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मिसाल दी थी कि जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, तो दोनों जगह के ऊपर जो इब्राहीम का वर्ड है वो हमारे पास हालत जर में आ रहा है, लेकिन फिनिशिंग जो है उसकी वो फतहा के साथ हो रही है। तो ये जो है ये एक आपके लिए टिप हो सकती है जिससे आप पहचान सकें कि जो गैर मुनसरिफ अस्मा है उनको हम किस तरह से सिमाई मुअन्नस में अगर आ जाते हैं फर्ज करें तो हम किस तरह से उसको जज करेंगे। अच्छा, ओके, ऑलराइट। इसमें हम एक क्विक सा रिव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हम जल्दी से इसको देखेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर हमारे पास ऐसे अस्मा होते हैं जिनको हम मुअन्नस होना उनका साबित नहीं कर सकते। मुअन्नस में बेसिकली हमारे पास 3 इसकी अक़साम आती हैं, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस अलामती और मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस हकीकी में ऐसे मुअन्नस होती है जिसका हमारे पास पेयर मौजूद होता है, तो उसमें से जो मुअन्नस वाला वर्ड है वो हम हकीकी मुअन्नस की कैटेगरी में ले आते हैं, और जो मुज़क्कर वर्ड है वो मुज़क्कर की कैटेगरी में चला जाता है। फिर 3 हमारे पास अलामात हैं जो कि ताए मरबूता, गोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ के बाद जो हमारे पास हमजा आता है, और अलिफ मकसूरा, ये 3 हमारे पास अलामती मुअन्नस की अलामात है। और मुअन्नस सिमाई में हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे हवाओं के नाम है, शराब के नाम है, आग के नाम है, जिस्म के ऐसे अज़ा जो के जोड़े में हों, 2-2 करके हों, ऐसे अस्मा को हम मुअन्नस सिमाई कहते हैं। और मुतफर्रिक अस्मा भी जो है वो मुअन्नस सिमाई की कैटेगरी में होते हैं।
यहाँ पे हमारा जो मुअन्नस का टॉपिक है वो हमारा मुज़क्कर और मुअन्नस का टॉपिक खत्म हो गया। तो अब अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो हम देख लेते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये तो मुअन्नस की सारी इकसाम है, मुज़क्कर की भी ऐसे ही इकसाम है या मुज़क्कर बस वही है कि जो मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आता? हाँ, मुअन्नस के लिए हमें मुज़क्कर के लिए हमें बस यही क्लू मिलता है कि जो अल्फाज हमारे पास मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आते, हकीकी ठीक मुअन्नस में, लफ्जी मुअन्नस में और सिमाई मुअन्नस में नहीं आते, वो सारे के सारे मुज़क्कर में चले जाते हैं। ठीक। यही हमारे पास एक चीज है इसको समझने के लिए। ओके, हमारे पास इस्म की जो 4 पहलू हैं उसमें से एराब का पहलू हम देख चुके हैं क्या है। उसके बाद हमने देख लिया जिन्स, इस्म की हमने देख ली। अब हमारे पास तीसरा जो पहलू आता है, यानी तीसरी जो साइड है इस्म की, तो वो हमारे पास है अदद, जिसको हम कहते हैं नंबर। तो जैसे हम उर्दू में हमारे पास कोई चीज या तो वाहिद होती है या जमा होती है, और इंग्लिश में भी हमारे पास ऐसा ही है कि कोई भी जो वर्ड होगा वो हमारे पास या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन अरबी जुबान में हमारे पास 3 अदद की अकसाम आती हैं। कोई इस्म या तो हमारे पास वाहिद होगा या मुसन्ना होगा और या फिर जमा होगा। इसमें ऐसा है कि वाहिद ऐसा इस्म है जो एक का अदद जाहिर करे अपने साथ। मुसन्ना ऐसा इस्म है जो अपने अंदर 2 का अदद लेता है, यानी 2 के नंबर को वो शो करता है। और जमा हमारे पास ऐसा होता है इस्म जो कि 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो वाहिद में हमारे पास ऐसे अस्मा आते हैं जो एक इस्म को जाहिर करते हैं, मुसन्ना में ऐसे आते हैं जो 2 का अदद अपने अंदर लेते हैं, ऐसा वर्ड होता है। और जमा में हमारे पास ऐसे अस्मा शामिल होते हैं जो कि 2 से ज्यादा को अपने अंदर लेते हैं। अब इसमें हम अगर मिसाल देखें तो कलमुन हमारे पास एक वर्ड है, किताबुन वर्ड है, जो कि कलमुन का मतलब होता है एक कलम, किताबुन का मतलब होता है एक किताब। और मुसन्ना यानी 2 का अदद शो करने वाले जो हमारे पास अस्मा होते हैं, इसमें हम कहते हैं कलमानी, 2 कलम हमारे पास होंगे, 2 कलमे, किताबानी 2 किताबें, ठीक। और जमा में हम अगर इन्हीं वर्ड्स को देखें तो कलम उनसे हमारे पास जो जमा होती है वो होती है अकलाम, मतलब 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा जो हमारे पास कलम होंगे तो हम उनको कहेंगे कि ये हमारे पास अकलाम है, ठीक है। और 2 से ज्यादा हमारे पास किताबें मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि ये कुतुब हैं, ठीक है। तो हमारे पास अदद की कैटेगरी में 3 अकसाम आती हैं। ऐसा वर्ड जो एक इस्म को, एक अदद को जाहिर करता है, ऐसा वर्ड जो 2 अदद को जाहिर करे वो मुसन्ना होता है, और जमा में ऐसा वर्ड जो कि 2 से ज्यादा के अदद को शो करता है। तो ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट भी ठीक तरीके से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसकी जो अकसाम और इसकी जो सारी हालतें हैं, क्योंकि एराब जाहिर है जो अदद है उसके अंदर भी एराब का ताल्लुक होता है। जैसे हमने देखा कि मुअन्नस और मुज़क्कर में भी एराब का ताल्लुक है, इसी तरह अदद के अंदर भी एराब का ताल्लुक होता है, क्योंकि ये इस्म के पहलू है ना। जब हम किसी भी एक वर्ड को देखते हैं तो उसके अंदर एराब भी मौजूद होता है, उसके अंदर जिन्स भी मौजूद होती है, उसके अंदर अदद भी मौजूद होता है, और उसके अंदर उसका मारिफा या नकिरा होना भी मौजूद होता है। तो इसलिए एराब के हवाले से भी हम अदद का जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वो किस तरह से होता है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अब ऐसा है कि मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रही थी कि होमवर्क्स जो है वो आप टाइम टाइम से करें, और जो जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसका फायदा आपके लिए है। आप सिर्फ अगर लेक्चर सुन के क्लास छोड़ देंगे तो उससे आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप
ہوم ورک نہیں کریں گے جب تک آپ ہوم ورک میں غلطیاں نہیں کریں گے، اور غلطیوں سے ڈرنے کے خوف میں آپ ہوم ورک کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی کلاس آپ کو فائدہ مطلب ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے سے پرسنٹ آپ کو فائدہ دے دے، لیکن زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اور اینڈ میں آپ کو ہوم ورک کیا دینا چاہوں گی کہ مذکر کی 5 اقسام، مؤنث حقیقی آپ کے لیے چوائس ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو، ویسے اگر آپ اس کے لیے سورہ مائدہ کو دیکھیں تو میرا جہاں تک خیال ہے وہاں ہمیں کچھ مؤنث حقیقی کی اقسام ملتی ہیں، جیسے ابل یعنی اونٹ، اونٹنی ہمارے پاس مؤنث حقیقی میں آتے ہیں، تو ابل کا ورڈ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے وہاں، یا کچھ اور الفاظ ہیں۔ سورہ مائدہ کو اگر اس کے لیے آپ اسپیسیفکلی دیکھیں، لیکن وہ آپ کے لیے چوائس ہے، اگر آپ کو مؤنث حقیقی ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو ایڈ کر لیں۔ ادروائز مؤنث علامتی اور مؤنث سمائی، یہ 3 آپ کے پاس کیٹیگریز ہیں جن کی آپ نے جو ہے ایگزامپلس لکھنی ہے اور 10 ایگزامپلس لکھنی ہے۔ ٹھیک، کوشش کیجئے 10 مل جائیں، اگر کسی قسم کی جیسے مؤنث سمائی ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ نہ ملے تو پھر آپ اس کی 5 لکھ دیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ 10 ایگزامپلس لکھیں، مذکر، مؤنث علامتی اور تیسرا کیا تھا، مؤنث سمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ قرآن سے ڈھونڈنا ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید سے ڈھونڈنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اوکے، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔